to convert to improve the competency of the IL6 aspirants who have appeared in the last IL6 cycle. So we have already started this technical webinar series from the month of September. So from the month of September, the technical webinar series are going on in various clusters, mechanical, electrical, and operations. It is going on very well, and around 18 clusters we have launched the technical webinar series to make the people more competent to clear the written test in the next IL6 cycle whenever it comes, so that it will help the people as a learning point of view. Also, it will help them in the career growth. So this is the whole idea of section. After we launched this section webinar series on technical, there have been a lot of requests around the IT and the managerial skills. And at TSK also there have been a lot of requests from the CHRBP HR team and also from the business to launch the managerial skill part through the section webinar series. So that's why we are here. That today we are launching the managerial skills section webinar series. So in this at TSK specifically we have included all TSK D employees who will undergo this webinars. So this webinar whole series is planned on 3 skills. This is the overall schedule. We have selected the skills on 3 topics: communication skills, personality development, and then achievement motivation. So while we have seen the overall number of participants, it was around 4,000 people were there. So that's why we have split it into 4 batches. So today we are with the first batch on the communication skill, and from this whole week we will be running the webinar series on communication skill, through which we will cover around 4,000 people. This is the plan. And as I understand today there is a less participation is there, and maybe we will repeat this webinar after this lunch, so that who have not been covered can also be covered. So I just wanted to also tell to the participants, this section is different than the Prakati. There is another program, it's also an online certification program which was initiative of TMDC. वो भी अभी इसी के साथ ही आ रहे थे, इसलिए कुछ लोग कंफ्यूज हो गए हैं. I wanted to make it clear that online Prakati is a different thing and this is a different thing. So this whole initiative of section webinar series managerial skill will get completed by 23 December 24, and that Prakati program is a different program. That I wanted to give a clarity to the participants. So overall, we have 12 webinars on 3 topics, and across TSL India, the people have been called in 4 batches. So someone need not to think that I did not get the link. You will get the link in the batch wise. So with a specific request of from CHRBP TSK or TSKD employees, from whether they appeared in the last ILC cycle or not, all TSKD employees have been included in this webinar series. So this is how we are going to proceed, and to proceed upon further. Hope I am audible. Yeah, you are audible. So this is how we are going to proceed. And any doubts are there, you can always connect with me or Minu madam after this webinar. We can help you out to get the link, or any doubts are there. If you wanted to interchange the link between the people, that also you can do. But any problems are there, please contact us. So now I request CHRBP TSK, sir, kindly give us the permission to launch this webinar on managerial skills. Sir. Yeah. Let us launch this program. Very important program. Thank you, sir. Thank you. Sir, now I request you to kindly address the participants and the gathering. Yeah, so good morning, everybody. Good morning, Mr. Akhilesh and our TMDC team for helping us out in designing and creating this program. It's a very important program for all of us at TSK. And so this need was felt about 1 year back that we must expose our TSKD employees to managerial skills, because they are the experience and future IL6 of the company. And apart from these technical skills, managerial skills are must. They must possess these skills. And just to share the data, we are going through a data of last year's cycle, IL6 selection cycle. And I saw that total from Kalinganagar, only 1429 employees from TSKD they had applied for IL6. 1,429. Out of that, 492 they qualified in the written test. And out of 492, till now 77 employees have been promoted to IL6, which is a very good number from Kalinganagar. But still we are not happy, and we have a very ambitious target that most of the employees must qualify the IL6. I know this IL6 technically you are capable. That is why you are being
promoted to the next level. Or apart from technical skills, managerial skills are must. And I must say three important topics TMDC team has chosen, that is communication skill, personality development and achievement motivation. These three things are very important skills. And communication is the topmost important skill when we work on the shop floor. So as a TSKD, you want interface. For the interface with the various agency to execute the work in the shop floor, wherein communication play a very vital role. And if you monitor or track the world news and all, in the world, most of the problems are because of communication problems. Because of communication. I think Dr. Achilles maybe agree with me. So communication is the most important. It can resolve all the conflicts at the shop floor. So my best wishes, if Jaya has come true, I was following up for Jaya for last 3 to 4 months with Mr. Achilles also. I'm very happy that finally the day has come. And I wish you all the best, all my TSKD employees. There is a lot of hope on you at TSK. You are our backbone. All the we are having 1670 TSKD at Kalinganagar, 1670. You are our backbone. And if you all are equipped with very good communication skills, very good other managerial skills, it will be better for you, it will be better for the organization. You know, the organization is going very fast. Like I have spent 34 years in Tata Steel, I have not seen such a growth which you have seen last 5 to 8 years. And these plants are very aggressive. You know, Kalinganagar, now we moved from 3 million ton to 8 million ton. Now we have planned to move up to 16 million ton. Tata Steel is very, very aggressive to go up to 40 million ton. And for that, we can bring the machines. Machines le aayenge, Germany se, Japan se machine le aayenge. But chalayega kaun? Like the quote of our chairman, machine to aayega, chalayega kaun? Chalayega our employees. For that, you have to be equipped with both skills, technical skills and managerial skills. And I'm sure our faculty from TMDC, they will give good input on these various parameters. And whenever there is anything, any doubt in your mind, you are spending very precious 1.5 hours time, please get your queries addressed. जो सवाल आता है दबाने का नहीं है. Because एक कहावत है in management में, you did not know everything in this world, but you must know where it is available. If I am not aware of something, I must ask clarification questions so that my queries are addressed. So I hope you will enjoy the program. It will be very interactive system both ways. Get your questions asked and bring live example from the shop floor and relate these examples with these managerial skills so that I will request my TMDC faculty to try to address those queries in a managerial skill way, how to handle it in a better way. And that will be more beneficial for you. I wish you all the very best and enjoy this session. Happy learning. Thanks, dear. Thanks for calling me. Thank you. Thank you, sir. Thank you. And sir, though today's attendance is relatively less, and we will constantly tweak. Someone is getting missed, and we will include them so that if there is more coverage, the due course of the course we will take care of. And one more thing announcement. So I will select randomly 10 to 15 people from each batch, and they will have one interaction with the VP operations. Right? I will tell them. So once program is over, maybe after 1 month, we'll have an interaction session with VP operations. So that we also showcase to him that yes, we are changing, we are learning new skills, and we are capable enough to work and deliver as per his expectations at Kalinganagar, right? Sure, sir. Sure. So thank you, sir. Thank you for your words, and we have noted, and we will definitely take it forward. So now I am requesting Achilles, sir, kindly please address and then propose the vote of thanks. Achilles, sir. Thank you, Jayakumarji. So, Chief HR VP Operations, TSK, Yashwant Pandey sir, Jayakumarji, my faculty from TMDC, Nimesha Ranparaji, right? And we are very thankful for you to taking out your time for this particular session and the entire series. And just wanted to carry on from what Pandey sir has just said, that ये एक 90 मिनट, जैसे वो आपका एक बहुत फेमस डायलॉग है ना, ये 70 मिनट, तो उसी की तरह से बोलना चाहूंगा कि ये 90 मिनट आप अपने आप को दीजिए. आई थिंक दिस इज वेयर यू विल लर्न अ लॉट, राइट? थैंक यू सो मच. Thank you, sir. Thank you. With this, we are closing the launch of this program, sir. And now over to the trainer, Nimisha madam is there. So I think, yes, Achilles, sir. No, it's okay. Nothing from my end. No, thank you. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Now over to TMDC and the trainer. Thank you, sir. Thank you for joining, sir. Thank you. Thanks. So I'm logging off, right?
Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thanks. So over to you, Nimisha. You are, if you're speaking, you're not audible. I think. No, not yet. Hmm. So Nimisha, you can try logging off and reconnecting. Maybe that will work. Yeah, you need to unmute. No, not yet. You may try reconnecting. Yeah. Yeah, very good morning, everyone. And sir, audible? Yeah, Nimisha, absolutely. Yeah. Okay, So thank you so much. sir. over to you, Nimisha. I'm muting myself and putting off my screen. Thank you. Sure. Thanks, sir. Yeah, very good morning and welcome to this program. This program has really lot of objectives set up already. Chief sir has also made it very clear the managerial skills are actually the term as the backbone of any organization. And from you all also, lot of expectations are there. I'll also try to make it worth listening for this 90 minutes. लेकिन मुझे ये आपसे भी है कि आप ऑल्दो आप यहाँ मुझे दिख नहीं रहे हो, आप लोग म्यूट पे हो, बट मेक श्योर फॉर जस्ट 90 मिनट्स बी इन्वॉल्व हियर. जितना यहाँ पे मैं शेयर करूंगी, all these things are from the experienced learners that I am sharing. All these are practically implementable activities, or you can say the tools, techniques that I'll be sharing on communication today. So please be very attentive. जो भी doubts है या जो भी है, hold on to your doubts. अगर आपको लगता है तो आप उसको लिख के रख लीजिए या फिर चैट में डाल के रख लीजिए, बिकॉज वी हैव सो लेस टाइम, जस्ट 90 मिनट्स. तो अगर हम बीच में डाउट्स लेते रहेंगे तो इट विल नॉट डू जस्टिस विद द टाइम अलॉटेड टू अस. लास्ट में हम लोग 5-10 मिनट्स का स्पैन रखेंगे, जिसमें कि एनी डाउट इफ यू हैव वी कैन टेक दोज डाउट्स. आई होप इट्स क्लियर. So without missing out lot of time, now let me quickly share my screen.
All right, so here it is. Here we are with business communication skills. जैसे यहाँ पे कहा ना आप लोग को कि you are the backbone of this organization. In the same way, to any organization, effective communication is termed as the backbone. You won't believe, but many organizations have suffered some unidentified losses. वो लॉस जो पता ही नहीं चला कि कहां से हुए, किस कारण हुए. Those losses came up from improper communication, ineffective communication, communication failures, miscommunication, so many things. So इसलिए जरूरी है that we start by enhancing our communication skills. No doubt आप इतने सालों से काम कर रहे हैं. No doubt you are really wonderful in communicating with your colleagues, the seniors, subordinates, everyone. But still there is always a step up. लेटेस्ट में क्या हो रहा है, आज हमारे पास किसी के पास टाइम नहीं है कि बैठ के सामने वाले को हम लोग सुन सके, properly समझ सके. So in that duration, how must be our communication that in very short span we convey our message, that too very effectively, which saves our time, which focuses on more of the message which is easily understandable to the person to whom we are saying. इस objective के साथ में let us begin this communication skills program. All right, to start with ये समझना जरूरी है कि effective communication कैसे help करता है. तो यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो है which I would like to share with you all. Okay, this video definitely is a different kind of video. इसको पहले देखते हैं, फिर समझते हैं कि effective communication कितने डेप्थ तक हेल्प कर सकता है. ठीक है, so let's have a look at this video. Yes, as I told you, this is a different kind of video. The cartoon itself tells us that right communication, precise communication at the right time, done in a proper way, really helps us to solve many problems, right? A small disclaimer before we begin with the actual learning. I'm having a bad throat. तो अगर बीच में थोड़ा सा कफिंग या कुछ होता है, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट एंड बेयर विद इट जस्ट फॉर टुडे. सॉरी. ओके, सो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे हेल्प कर सकता है. इन दिस वीडियो ऑल्सो यू सॉ कि जब पता चला कि बियर इन लोग को, एनिमल्स को खाने वाला है, बाकी सारे एनिमल्स ने जैसे बियर को अप्रोच किया, दे वर लाइक वेरी स्कैर्ड. नंबर वन, नोटिस करिएगा, दे वर वेरी स्कैर्ड. They had, kind of hesitation to ask. They were not sure what actually they want to convey. And that is why the result that they got was not as per their expectations. Jab rabbit wahan gaya and he asked directly, he had everything in his mind. He was bindas
कि ठीक है चलो ट्राई करेंगे, होगा तो होगा, ना तो ऐसे भी मरना ही है काइंड ऑफ थिंग, आज नहीं तो कल. ही वेंट वेरी कॉन्फिडेंटली, ही आस्क्ड, स्ट्रेट वे में उसने कम्युनिकेट किया, एंड दैट इज व्हाई he was able to convey the message कि आप प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, and he was and the bear was like ठीक है चलो कोई बात नहीं, तुमको छोड़ देंगे. इफेक्टिव कम्युनिकेशन अगर आपका होगा, वो राइट मैसेज पहुंचाएगा प्रिसाइज वे में, तो वो मैसेज भी आगे समझ में आएगा. With the same thing, the next one, sorry, just a minute. Yes. अगर हम लोग जो अभी वीडियो देखा उसके बेसिस पे कम्युनिकेशन को समझे, तो व्हाट इज कम्युनिकेशन? डेफिनेटली सभी लोग कहते हैं दैट कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग द विशेस, आइडियाज, फीलिंग्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, राइट? 90% people say that yes, this is the correct and proper definition or meaning of communication. यहीं पे communication failure occur होता है. कैसे? Because the second part of this meaning, that is having them receive the same way in which they were meant to be, that is missing. People generally say मैंने उसको मैसेज देना था, मैंने तो मैसेज दे दिया है, अब उसको नहीं समझा तो उसमें मेरा क्या गलती? बस आप ही का गलती है, because you were not able to convey the message in the way the person is going to understand. अगर आपको लगता है कि बार बार कोई बंदा आपकी बात नहीं समझ में आ रहा है, जनरली यू नो शॉप फ्लोर पे या प्लांट में ये सारी प्रॉब्लम आती है. एक जन को बार बार एक चीज बताना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो वही गलती करता रहता है, तो आप उसका तरीका बदलिए. योर कम्युनिकेशन इज नॉट हिटिंग द राइट स्पॉट, इट इज नॉट गोइंग एज इट शुड बी, इट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल टू द पर्सन, is not able to receive what you want to tell that person, right? तो ये तो हो गया meaning of communication. Now let's go to the root cause कि communication अगर हम लोग कह रहे हैं कि हमें सीखना है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें आता नहीं है. We have been learning communication since our childhood. कैसे बोलना है, कैसे क्या करना है, everything we are learning. Now at this stage, अभी हम लोग जिस लेवल पे है काम करने के, what we want to understand is why communication failure occurs. So अगर हम लोग बात करें communication failure क्यों occur होता है, there are so many identified reasons. जैसे यहाँ पे मैं कुछ reasons आपके साथ शेयर करूंगी. I am very sure ये reasons आपने भी experience किए होंगे. I wish I could take reasons from your end, लेकिन because of the time constraint, ठीक है, let me only tell about it, and I hope you all will agree to it, and I want you all to put it in the chat box. जो भी failure के reasons, communication failure के reason आप लोग ने experience किए होंगे, you may put it in the chat box. I'll share it here, and फिर chat box से भी हम लोग वो सारे inputs लेके बात करेंगे. Alright? So, जैसे मैं ये बताती हूँ, आप भी पैरेलली चैट बॉक्स में कम्युनिकेशन फेलियर के रीजंस को शेयर करिएगा, राइट? तो फर्स्ट रीजन आइडेंटिफाइड इज लैंग्वेज प्रॉब्लम. मैं कुछ डिफरेंट लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, आपका कोई डिफरेंट लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है. जनरली जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है, अगर वहां से कोई आते हैं, सपोज करिए साउथ से कोई आए, उनका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होगा, उनको हिंदी इतना अगर अच्छा नहीं आता है तो उनको प्रॉब्लम होगा. सपोज करिए कि कोई प्लांट में कोई नया मशीन लेकर आए, ठीक है, वो मशीन कहीं बाहर से लेकर आए हैं, एंड वहां से टेक्नीशियंस आए हैं वो आपको सारा कुछ बताने के लिए. डेफिनेटली उनका लैंग्वेज हमें कम समझ में आएगा. लैंग्वेज इज वन ऑफ द रीजन जिसके कारण कम्युनिकेशन फेल होता है. इवन तो आप इंग्लिश में ही बात करोगे, लेकिन फिर भी उनके प्रोनाउंसिएशन, उनका टोन, उनकी काफी सारी चीजें हमें नहीं समझ में आएगी, राइट? नेक्स्ट, इनएप्रोप्रिएट मीडियम. जो कम्युनिकेशन फेस टू फेस होना चाहिए था, उसको मैंने मैसेज में लिख के भेज दिया, ईमेल कर दिया, तो डेफिनेटली इट क्रिएटेड सो मच कंफ्यूजन कि इट लैंडेड इनटू कम्युनिकेशन फेलियर. ये हम लोग ने सब ने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया हुआ है, राइट? इसके भी कारण कितने सारे लॉसेस हुए हैं. एक कोई प्रोग्राम या फिर
मीटिंग ऑर्गेनाइज किया जाता है ये कह के कि द मीटिंग विल बी ऑर्गेनाइज्ड अराउंड 5 PM। अब किसी को 5 PM की जगह पे 5 AM लिख के चला गया, तो वो सोच रहे सुबह 5 बजे में मीटिंग रख के क्या करेंगे, राइट? तो ऑल दिस काइंड ऑफ, एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ऑल सो मेनी काइंड ऑफ एग्जांपल्स आर देयर फॉर इनएप्रोप्रिएट मीडियम। ऑल्सो इट्स राइटली सेड कि अगर कम्युनिकेशन आपका है, मे बी यू वांट टू सॉर्ट आउट विद सम प्रॉब्लम, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कोई प्रॉब्लम हुआ है, एंड इफ यू वांट टू सॉर्ट इट आउट, select the right medium, otherwise it would be just waste of time and it will get more complicated. फोन पे अगर बात किया तो वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और एग्रेसिव हो जाएगा। जहाँ फेस टू फेस होना चाहिए, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होना चाहिए। जो ऐसे कम्युनिकेशंस है जहाँ पे हमें डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, हमें रिटन अप्रूवल्स चाहिए, वहां पे ईमेल्स, मैसेजेस विल बी ओके, बट सिलेक्ट द मीडियम प्रॉपरली। कंफ्यूजन क्रिएट करता है इम्प्रॉपर मीडियम। यस, बहुत से लोग कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं। आपके आसपास पे भी होगा ना, आपने किसी ना किसी को तो बोला ही होगा, याद करिए, बस तुम अपने मन से सब समझ लो, पूछना तो चाहिए आके, कहीं ना कहीं सुना होगा या आपने भी बोला होगा, पीपल अज्यूम बाय देमसेल्फ। अरे हर बार तो आप यही बोलते हो, हमको होगा काइंड ऑफ थिंग। ये कब होता है? when you are not clear about what you want them to do for you. अगर आपकी बातें बहुत ज्यादा you add in the fillers in your statement, you are not so much straight on talking कि क्या चाहिए, तो सामने वाला बहुत सी चीजें अज्यूम कर लेगा। अच्छा उसने मुझे ये बोला होगा, अच्छा उसने मुझे ऐसा करने को बोला होगा, काइंड ऑफ थिंग। कम्युनिकेशन फेलियर, मिसकंसेप्शन द सेम वे। मुझे क्या पता कि आपको ये चाहिए होगा, मेरे को लगा कि ये सब हो जाएगा, वो कर लेगा, उसने तो अभी तक किया ही है, उसको थोड़ी बोलना पड़ता है। All this kind of things result in communication failure. Company suffers losses. Psychological aspect. Suppose करिए कि अभी बहुत बढ़िया यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी बताई जा रही है, लेकिन आप में से किसी का दिमाग कहीं और है। तो कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन होने वाला है घर पे, शादी का सीजन चल रहा है ना, शादी है घर पे, सब है, सारे गेस्ट आने वाले हैं, आपके सारे फेवरेट सब रिलेटिव्स आने वाले हैं, एंड यू आर स्टक हियर विद द प्रोग्राम। तो आपका दिमाग यहाँ होगा प्रोग्राम में? डेफिनेटली नॉट। आप बार बार वहां सोच रहे होंगे, आप मोबाइल में देख रहे होंगे, उनके फोटोग्राफ्स देख रहे होंगे ग्रुप में जो आ रहे हैं। Psychologically, when the person is not present, or I can say involved in the communication, definitely communication failure. फिर सामने जो बोल रहा है, the communicator could be very effective. उसने हर एक बात बहुत सटीक कही है, बहुत clearly mention की है, everything is done. But the person who was listening, he was psychologically not present or involved in the communication process. That is why the communication failure occurred. तो इसके लिए जरूरी है कि हमें ये देखना है if the person is involved properly in the communication process or not. अब ये कैसे पता चलेगा? Definitely it's difficult, लेकिन अगर face to face है तो आप उसका body language देख के समझ सकते हो, आप उसको पूछ सकते हो, सामने questions कर सकते हो कि are you here, like समझ में आ रहा है, are we on the same stage kind of thing. तो आपको पता चल जाएगा, उसको इन्वॉल्व करते रहिए बीच बीच में, राइट? लैंग्वेज डिफरेंसेस, जैसे मैंने कहा लैंग्वेज, उसी तरह लैंग्वेज डिफरेंसेस, प्रोनाउंसिएशंस, लाइक इफ व्हेन आई गो टू टेक प्रोग्राम्स टू कोलकाता, वहां पे आई हैव टू फेस द लैंग्वेज डिफरेंसेस। वो लोग अगर मुझे कोई क्वेरीज या क्वेश्चंस पूछते हैं, आई हैव टू समटाइम्स कीप द मीडिएटर आल्सो इन बिटवीन। मुझे नहीं समझ में आता है बहुत ज्यादा टेक्निकल अगर वो लोग कुछ पूछ ले, क्योंकि उनका जो प्रोनाउंसिएशन है, कोई चीजें बहुत ऑथेंटिक हो जाती है बंगाली में, मुझे नहीं समझ में आता, बिकॉज आई एम नॉन बंगाली पर्सन। इसलिए लैंग्वेज डिफरेंसेस भी मैटर करता है। यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन, द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन दिस इज मोबाइल फोन। जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में मैंने कहा, व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद समवन and you have the mobile phone in front of you, definitely you are not completely involved in the communication process.
बार बार उस पर कुछ ना कुछ आते ही जाएगा, मैसेजेस और ईमेल्स और एनीथिंग, द स्क्रीन विल बी गेटिंग लाइटेड अगेन एंड अगेन, आपका डिस्ट्रैक्शन शुरू। The best thing to do when you are into a meeting or some important communication, अपना जो मोबाइल है उसको अपनी फाइल के अंदर, नोटपैड के नीचे, या तो फिर मोबाइल को अपसाइड डाउन करके रखिए। Then you will be able to overcome this distraction. Alright? Also, there are other distractions like plant में अगर आप काम कर रहे हो, lot of noise, that is one of the distraction. Distraction होगा unnecessary receiving calls. ठीक है, बार बार कोई आपको पूछ रहा है, कॉल कर रहा है, तो अगर आप कोई कम्युनिकेशन प्रोसेस में हो तो आपको वो समझ में नहीं आएगा क्या बोला जा रहा है, बार बार ब्रेक होता जाएगा कम्युनिकेशन। सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस आर देयर। आपने कौन कौन से डिस्ट्रैक्शंस फेस किए हुए हैं, प्लीज मेंशन इन द चैट बॉक्स। कौन कौन से डिस्ट्रैक्शंस आपने फेस किए हुए हैं? पुअर लिसनिंग स्किल्स, मेरा फोकस ही नहीं रहता, सामने वाला जब कुछ बोलता है मुझे लगता है कि हाँ ये क्यों बोल रहा है, मुझे उसको ऐसा जवाब देना चाहिए, मैं सुन नहीं पाता, मेरे अंदर वो पेशेंस नहीं है सुनने का। ऑल दिस काइंड ऑफ रीजन, पुअर लिसनिंग स्किल्स। अगर आप कोई बात सुनोगे ही नहीं तो हाउ वुड यू गेट द मैसेज प्रॉपरली? इट इज राइटली सेड कि आप अपने लिसनिंग स्किल्स को एनहांस करिए। अ पर्सन हु लिसन्स वेल, understands well and is able to take the decisions well, is able to solve the problem well. इसलिए आपके लिसनिंग स्किल्स को आप एनहांस करिए। आज हम लोग लिसनिंग स्किल्स की भी बात करने वाले हैं। इन दैट यू विल कम टू नो हाउ टू एनहांस योर लिसनिंग स्किल्स। राइट, यस, ये तो अभी तक में जितने थे ये सारे बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। नाउ आई विल शेयर विथ यू सम वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स जो हम जाने अनजाने में इग्नोर कर जाते हैं। द फर्स्ट वन, सीइंग इज नॉट बिलीविंग। अगर आपने कुछ देख लिया, जब भी आप कहीं जाते हो, लेट्स से प्लांट में, जब भी आप इंस्पेक्शन के लिए जाते हो, कुछ देखने जाते हो, आपको दिखता है कि वो एक बंदा हमेशा टाइम पास ही कर रहा है, फोन में ही लगा हुआ है, ठीक है, एंड नाउ यू स्टार्ट बिलीविंग कि ये काम नहीं करता, ये पूरे दिन फोन में लगा रहता है। ये भी तो हो सकता है कि जब आप वहां पहुंचते हो उसी वक्त उसको फोन लेना पड़ता है। यू कैन नॉट बी बायस्ड दिस वे, राइट? तो ये भी एक काइंड ऑफ बायसनेस है जिसके कारण कम्युनिकेशन फेलियर होता है। सीइंग इज नॉट बिलीविंग। सेकेंड, जस्ट बिकॉज वी ऑल स्पीक इन इंग्लिश डजंट मीन वी स्पीक द सेम लैंग्वेज। मतलब अगर इंग्लिश में भी या फिर कोई भी एक लैंग्वेज में बोला जा रहा है, उसमें भी एक पर्टिकुलर वर्ड का अलग अलग मीनिंग हो सकता है, राइट? जैसे लेट्स से कि एक एग्जाम्पल ऐसा कोई होगा कि मैंने उसको कहा एक पानी का ग्लास लेकर आओ, और उसको लगा कि भाई पीने का ग्लास पानी का चाहिए होगा, तो अच्छे से भर के थोड़ा टाइम लेकर आया, अच्छे से ट्रे में सजा के, एंड आई वाज लाइक अरे खाली ग्लास चाहिए था, यहाँ पे है पानी। तो बात तो सेम गई, बट द अंडरस्टैंडिंग वेंट इन द डिफरेंट वे। इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है जिस पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। यू नीड टू आइडेंटिफाई द रीजंस ऑफ कम्युनिकेशन फेलियर दैट यू आर फेसिंग। क्यों कम्युनिकेशन यहाँ पे इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है? नेक्स्ट, योर इंटेंशंस डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स द रिस्पॉन्स दैट यू गेट। अभी देखिए, अभी आप एक लेवल अप हुए हैं, लेट्स से कि इसके बाद में आपको लगा कि नहीं, नाउ आई एम ऑन द लीडर लेवल, तो अब मुझे थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना ना पावर बढ़ाना पड़ेगा। सो आई विल नॉट अलाउ एनीबडी टू चिट चैट एट द वर्क प्लेस, या फिर टाइम पास नहीं करने को बोलूंगा, सिर्फ एकदम सिंसियरली काम करेंगे, बहुत ज्यादा हंसी मजाक नहीं चाहिए। लेट्स से यू वेंट विद दैट, और बिकॉज ऑफ दिस आपके जो जूनियर्स है, सबऑर्डिनेट्स है, उनको ये लगने लगा कि देखो इनमें घमंड आ गया, इनमें ईगो आ गया। ही स्टार्टेड thinking himself as a big leader, and he wants to suppress us, dominate us. हम लोग इसके अंडर में काम ही नहीं करेंगे। उन लोग ने रिवोट कर दिया। इंटेंशन क्या था आपका? टू हैव अ नाइस sincere workplace, work environment, but the response that you are getting is completely different. तो जब हम लोग कुछ कम्युनिकेट करते हैं ना, हमें फॉलो अप लेना है, हमें फीडबैक लेना है उन लोग का, उनको समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज समझने की जरूरत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई हैव टू बी एम्पैथिक टुवर्ड्स माय लिसनर्स।
I hope you all know the meaning of empathy. Empathy का मतलब होता मैडम है वॉइस नहीं आ रहा है। वॉइस नहीं है, तो मैम इट इज ऑडिबल मैम। ऑडिबल है? यस मैम इट इज ऑडिबल। ओके ओके, प्लीज ऐसा कुछ होता है तो प्लीज बता दीजिए, ठीक है। किसको वॉइस नहीं आ रहा था आपका, थोड़ा सा सिस्टम चेक कर लीजिएगा प्लीज। ऑलराइट, so because I am focusing more on my deliverables, so अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है please somebody take the initiative to tell me that, okay? Yeah, starting at yes, so yes, empathy क्या होता है? अनुभूति। Let's say कि अगर मुझे पैर में अभी प्लास्टर लगा है, ठीक है, वी आर हैविंग दी ऑफलाइन, मैं आपके सामने खड़े खड़े प्रोग्राम ले रही हूँ और लेट्स से मुझे पैर में प्लास्टर लगा हुआ है और आपका प्लास्टर अभी लास्ट वीक ही खुला है पैर का, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द पेन आई एम गोइंग थ्रू, रादर यू विल बी एबल टू फील द पेन आई एम गोइंग थ्रू, राइट? तो आप बोलोगे नहीं मैडम खड़े मत होइए, आप बैठ के करें, मुझे पता है कितना दर्द होता है, ये मैंने पहले भी मैंने एक्सपीरियंस किया है ऐसा, राइट? दिस इज कॉल्ड एज एम्पैथी। सिंपैथी इज अरे हाँ बेचारी को दर्द हो रहा होगा काइंड ऑफ। एम्पैथी, आई कैन फील द पेन। जब आप अपने आसपास के लोगों के साथ में एम्पैथी के साथ काम करोगे, अब आप जिस लेवल में जा रहे हो, यू विल बी द मिडिल लिंक बिटवीन द सीनियर मैनेजमेंट एंड द सबऑर्डिनेट्स, राइट? तो यहाँ पे आपको एम्पैथेटिक होना ज्यादा जरूरी है, बिकॉज sorry, you have to cater to the problem of subordinates and you have to understand the requirements of the seniors. So इस बीच में when you will empathize with both of them, you will be able to communicate what you want the subordinates to do and you will be able to communicate to the seniors what the subordinates are expecting. Are you getting my message clear? राइट? तो इस चीज के लिए सबसे पहले हमें ये जो कम्युनिकेशन फेलियर के जो एग्जांपल्स हैं, इसके ऊपर काम करके इनको ओवरकम कैसे करेंगे इस पे फोकस करना है, ठीक है? आप इसका एक फोटो ले सकते हो या इसको आपने नोट डाउन किया होगा तो ज्यादा बेटर है। अब ये सब में से मैक्सिमम कम्युनिकेशन फेलियर्स आप कौन से फेस करते हो आपके तरफ से, ठीक है? उस पे आप काम करना शुरू करोगे विद द एक्शन प्लान, ठीक है? आज ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद एक छोटा सा टिप दूंगी आपको एक्शन प्लान बनाने का, तो उसके ऊपर आपने इसको शुरू करना है काम करना, राइट? ये तो बात हो गई कम्युनिकेशन फेलियर। नेक्स्ट बात आती है कम्युनिकेशन कैसे ज्यादा इफेक्टिव किया जाए। ओके, तो आप कम्युनिकेशन इफेक्टिव करने के लिए लेट्स डू अ स्मॉल डेमोन्स्ट्रेशन हियर, ठीक है? अब अगर आप अपने डेस्क पे है या आपके पास में कुछ है, पेन पेपर नोटपैड या ऐसा कुछ, तो 3 लाइन ड्रॉ कर लीजिए बहुत जल्दी, मतलब ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, बस ड्रॉ 3 लाइन और कुछ मत करिए। ओके, कर चुके आप 3 लाइन ड्रॉ। अब यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने 3 पैरेलल लाइन ड्रॉ की होगी, इस तरह से खड़ी लाइन ड्रॉ की होगी, राइट? आप में से किसी ने भी कुछ डिफरेंट बनाया है, अ ट्रायंगल और समथिंग, तो यू कैन जस्ट रेज योर हैंड। ओके श्रीनिवास सर, ठीक है, दैट्स ग्रेट। अब यहाँ पे ओके पैरेलल लाइंस फ्रॉम बच्चे, ऑलराइट। नवनीत जी ने भी ट्रायंगल बनाया है, ग्रेट। अब देखिए यहाँ 72, लेट्स से 70 हो आप लोग, 70 में से अगर 2 जनों ने ट्रायंगल बनाया है, बाकी सब लोग पैरेलल लाइंस के साथ गए हैं, ठीक है? बट यहाँ ठीक है, चलिए लेट्स से कि 1/4 ऑफ यू हैव मेड अ ट्रायंगल, ठीक है? वैसे चलते हैं सोच के, व्हाट आई वांटेड इज अ ट्रायंगल। तो अब यहाँ पे जिन्होंने ट्रायंगल बनाया है वंडरफुली डन, लेकिन जिन्होंने पैरेलल लाइंस बनाई है, क्या वो गलत है? कम्युनिकेशन फेलियर ऑकर हुआ यहाँ पे। फ्रॉम हुज एंड? माय एंड, राइट? माय कम्युनिकेशन वाज नॉट क्लियर। जहां पे मैं बता रही हूँ कि 3 लाइन ड्रॉ करिए, उसकी जगह पे अगर मैंने कहा होता कि एक ट्रायंगल ड्रॉ करिए,
Don't you think that would do justice with the kind of result that I wanted? ये तो एक demonstration है, लेकिन समझने की बात ये है, from the 7 C's of communication, the first one, that is clarity of communication. आप क्या convey करना चाह रहे हो? What is your objective of conveying this message? Why you want us to study communication skills? What do you expect out of us after studying communication skills? ये सारी clarity जब तक नहीं होगी, तब तक आप क्यों 1.5 घंटा यहाँ पे बैठ के बस सुनोगे? समझ रहे हो बात मेरी? For any kind of communication to happen, the clarity of the results, the clarity of communication, the clarity of language, the clarity of words, everything is needed. तो सबसे पहले तो focus on the clarity. Second, concise. एक सुना होगा ना आपने KISS principle, keep it short and simple. This is what concise is all about. बहुत से लोग जब कोई मैसेज कन्वे करते हैं, they add on so many fillers like अच्छा पता है, अरे वो सुनो ना, ये कर लो, वो मतलब they stretch the words so much that it really makes the person who's listening uncomfortable. उनको लगता है जल्दी बोलो, खत्म करो, समझ में नहीं आ रहा आप क्या चाहते हो. Nobody has so much time to listen to what you want to say. जो भी कभी आप कुछ भी बोलने जाते हो मीटिंग में या कुछ भी आप फोन पे बोलना चाह रहे हो, before you connect with the person, get it clear in your mind what you want to convey in the concise format. जितना concise होगा उतना effective होगा. और concise होने का एक benefit ये भी है that you leave room for the person to ask questions. जब वो क्वेश्चन करेगा तभी तो आपको समझेगा ना कि वो सुन रहा है आपको, वो और जानना चाह रहा है, वो इंटरेस्ट ले रहा है आपकी बातों में. तो leave some scope for the person to ask questions. Don't be so explanatory that you say everything and they just keep on listening to you. Concise form में लिखिए, ठीक है? Concrete. Now this is very important. अगर आपको चाहिए कि आपका जो कम्युनिकेशन है ये सामने वाला सुने और माने, that means you persuade that person, you are able to convince that person to do whatever you want them to do. तो उसके लिए include this concreteness in your communication. अभी ये क्या होता है concreteness? Let me give you one example of it. Let's say एक ad है, ठीक है? टीवी एड का एक इमेजिनेशन करिए कि एक बहू है, अपने छोटे बच्चे को रात को सोने के पहले डायपर वगैरह पहना के रेडी कर रही है सोने के लिए. नाउ द मदर इन लॉ एंटर्स एंड सेज कि अरे बच्चे को डायपर पहना के जकड़ा के क्यों तुम सुलाना चाह रही हो, कॉटन का नैपी पहनाओ, अच्छे से सोएगा बच्चा. देन द बहू रिप्लाइज कि नहीं, फिर कॉटन का नैपी गीला करता है, रात में 2-3 बार उठता है, रोता रहता है, इसलिए ठीक है, यही वाला सच सही है. एंड मदर इन लॉ इज लाइक अच्छा उठता है तो चेंज करके वापस सुला देना, उसमें क्या है. तो डॉटर इन लॉ इज लाइक आपको नहीं समझ में आता है, आप छोड़ दीजिए, वो डायपर ही ठीक है. तो मदर इन लॉ वहां से चली जाती है ये बोलते हुए कि आजकल की बहुएं कहाँ बात मानती है. ठीक है, ये हो गया सीन 1. सीन 2, जैसे मदर इन लॉ ने टोका कि डायपर मत पहनाओ, नैपी पहनाओ, द डॉटर इन लॉ रिप्लाइज मम्मा अगर ये डायपर पहन के सोएगा तो ये बार बार उठेगा नहीं जैसे कॉटन की नैपी में उठता है, और वो एट द स्ट्रेच 8-10 घंटा सोएगा तो सुबह में फ्रेश उठेगा. राइट. देन मदर इन लॉ रिप्लाइज देखिए आजकल की बहुएं कितनी स्मार्ट है, हमारे जमाने में तो ये सब होता ही नहीं. सिनेरियो सेम है, एक्टिविटीज सेम है, द वे ऑफ रिप्लाइंग इज विद कॉन्क्रीटनेस. व्हाट शी डिड वाज she supported her sentence with this concrete reason कि मैं क्यों उसको कॉटन का नैपी पहना रही हूँ. एक लॉजिक आप जब बता देते हो ना सामने वाले को तो उसको ये बात कन्विंस हो जाती है. Always support your sentences with the concreteness. Next comes the correct information. No matter what happens, if you are giving them incorrect information, it results into trust issues.
कारण वो अगर आपकी बात मानना भी चाहे, आपकी बात पे काम करना भी चाहे, दे विल नॉट डू इट बिकॉज दे डू नॉट ट्रस्ट यू। आप देख लीजिएगा आपके आसपास में जितने लोग हैं या आप जिनके बीच में काम कर रहे हो, जिनके ऊपर आपको विश्वास है, वो लोग जो भी आपको बोल दे आप कर लोगे आप सुन के, लेकिन जिनके ऊपर ट्रस्ट इश्यूज है, यू विल नॉट अग्री टू डू देयर वर्क इन फर्स्ट टाइम। होता है ना ये? सो करेक्ट इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज कोहेरेंट। लेट्स से अगर हम अभी कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं और कम्युनिकेशन की बात करते करते हम लोग टाइम मैनेजमेंट या टीम बिल्डिंग के टॉपिक पे निकल गए। अब यहाँ पे क्या होता है ना, द लिसनर, जो लिसनर होता है उसका ना बीच बीच में देखना आप अटेंशन स्पैन टूटता है। आप भी अगर आपके सामने स्क्रीन पे मुझे सुन रहे हो सब है, अचानक से आप फोकस करोगे, आपका माइंड कहीं और चला गया है, एंड देन यू ब्रिंग बैक द माइंड कि अरे ये क्या हो गया, नहीं मुझे सुनना है करके कैसे माइंड चला जाता है। ये सभी का एक अटेंशन स्पैन होता है। अब जब हम लोग कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं उस वक्त आपका अटेंशन स्पैन यहाँ था, फिर कोई बात निकली टीम मैनेजमेंट की जिसको हमने जोड़ के ही आगे बढ़े थे, लेकिन आपका अटेंशन स्पैन रिकनेक्ट हुआ टीम मैनेजमेंट के बाद में, तो योर माइंड विल गेट कंफ्यूज कि अभी तो कम्युनिकेशन के ऊपर बात कर रहे थे, टीम कैसे आ गया। होता है ना ये? इसीलिए द कोहेरेंटनेस मतलब इन रिलेशन विद कनेक्टिंग रखवा। अगर ऐसा होता है कि दो टॉपिक पे हमें बात करनी है, लेट्स से मीटिंग में होता है ना ऐसा कि 2-3 टॉपिक पे बात करना है, जब एक टॉपिक पे बात खत्म होता है प्लीज गिव सम टाइम, द कुशन टाइम बोला जाता है उसको, ठीक है? जब आप काम से रिलेटेड बातें ही रखते हो बट इट इज न्यूट्रल, इट इज लाइक बोर्ड पे बहुत सारा कुछ लिखा है, अब ये बोर्ड से थोड़ा हटाओ ताकि दूसरी बात लिख सके, इट्स लाइक दैट, ठीक है? जैसे करेक्ट इंफॉर्मेशन देना जरूरी है वैसे ही कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। अगर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, सामने वाले को पता चल जाता है कि ये कुछ छुपा रहे हैं आपसे, ऑल्दो आपको छुपा नहीं रहे होंगे, आप सारा ही कुछ बताना चाह रहे हो, बट दे विल बी लाइक कुछ तो छुपा रहे। सो अगेन द ट्रस्ट इश्यूज कम अप, जो कि सही नहीं है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन दीजिए। नो मैटर व्हाट हैपेंस, नो मैटर व्हाट यू से, if the courtesy is missing, the respect, the politeness, respect to the designation, respect to the person, if that is missing, definitely आपका communication सही नहीं होगा, effective नहीं होगा, सामने वाला आपकी बात से convince नहीं होगा, influence नहीं होगा, वो आपका कहा हुआ नहीं करेगा। So make sure you include the 7 C's of communication to enhance your communication skills. Clear रहिए जो भी बोल रहे हैं, शॉर्ट में बोलिए, अपनी बातों को लॉजिक के साथ सपोर्ट करिए, सही इंफॉर्मेशन दीजिए, झूठ इंफॉर्मेशन या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मत दीजिए, कनेक्टेड रहिए, टॉपिक से कनेक्टेड रहिए, एंड विथ रिस्पेक्ट बोलिए। दिस इज हाउ द कम्युनिकेशन structure must go. I hope this thing is clear. Any question in this regard? Anyone? यहाँ तक में सब clarity है? Can I get thumbs on this? Everyone? जी मैम। Okay. Do you think this will be useful to you all? Yes मैम। Okay. तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Ma'am, can you please explain little about courteous? courteous का मतलब होता है being respectful, ठीक है? being respectful यार, अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट भी किसी के साथ हो रहा है, हॉट आर्ग्यूमेंट हो रहा है, बट यू डू नॉट लूज द रिस्पेक्ट ऑफ दैट पर्सन। आप जब भी बात करो, जैसे यहाँ हम लोग के जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है ना, यहाँ पे देखिएगा आप सब एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्टफुली बुलाते हैं, आप एंड ऑल से बात करते हैं, बट व्हेन यू गो टू दी अदर स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र वगैरह में जैसे ही उनका झगड़ा वगैरह शुरू होता है ना, वो डायरेक्ट तू तड़ाके पे आ जाते हैं, एंड देन दैट साउंड्स रूड। सो बात यहाँ पे ये है कि नो मैटर आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, यहाँ पे हॉट आर्ग्यूमेंट हो रहा है, बट स्टिल द पर्सन हैज द रिस्पेक्ट फ्रॉम यू, उनका वो रिस्पेक्ट को आप यहाँ पे कहीं भी डैमेज नहीं होने देते हो। With due respect, you are putting up your points, you are fighting with that person, you are having hot argument with that person, लेकिन
अच्छे तरीकों को एनहेंस करें। नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, आप जिस लेवल में जा रहे हो ना, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा, सीनियर्स है, सबऑर्डिनेट्स है, उसके बीच में आप हो। देयर विल बी टाइम when you will have the occasions जहां पे आपको कभी चुप रह के सुनना होगा, बहुत अच्छे से समझनी होगी बातें। There will be times when you will have to be dominating over people, अपना काम निकलवाने के लिए, right? In a leadership role, sometimes subordinate role, sometimes leadership role. अब ये जो आप शफल करोगे ना leadership and subordinate के इसमें, इसके साथ साथ में आपका कम्युनिकेट करने का स्टाइल भी चेंज होता रहेगा। अब ये स्टाइल क्या है और कैसे चेंज करना है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस इज कम्युनिकेटर स्टाइल, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव एज वेल। ओके, फर्स्ट स्टाइल इज ड्राइवर स्टाइल। सो व्हेन वी टॉक ऑफ अ ड्राइवर, द नेम इटसेल्फ सेज वन हु ड्राइव्स द फ्लो, थोड़ा डोमिनेटिंग, जो अपनी बातों को बहुत अच्छे से सामने वालों के सामने रखेगा, कम्युनिकेट करेगा, उसको जो चाहिए वो सारा कुछ बोल देगा। तुमको क्या प्रॉब्लम है, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे ये चाहिए, आप करके दो, दैट्स इट। दैट इज व्हाट ड्राइवर स्टाइल। वन वे कम्युनिकेशन होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, आप जब आपके अंडर में एक 10 लोगों का सबऑर्डिनेट्स का टीम है, आपको एक डेडलाइन के साथ में एक काम दिया गया है एंड यू हैव टू गेट इट डन एनी हाउ। तो अब वो जो डेडलाइन वाला काम है वो करवाने के लिए आप प्रेशर बनाओगे ये 10 लोगों पे, कुछ भी हो जाए, मुझे ये काम 5 दिन में चाहिए या 7 दिन में चाहिए, इफ यू टेल देम। अब उसमें से 2 जन आके बोले, अरे हमारे यहाँ शादी है, हमें ये करने जाना है, हमें वो करने जाना है, स्टेटमेंट क्या आएगा आपसे? मुझे कुछ नहीं पता, नो छुट्टी, नथिंग, अभी ये काम कंप्लीट होना है, उसके बाद ही मैं सब सुनूंगा। दिस इज व्हाट ड्राइवर स्टाइल इज ऑल अबाउट। You are not receiving anything from anyone. You are only focusing on expressing yourself. Driver style communicator. They tend to become the best team leaders जहां पे crucial time में, deadline के वक्त में आपको काम निकलवाना है लोगों का। Then get into the driver style of communicator. कभी कभी होता है ना, आप मीटिंग में हो या आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो, अब वो प्रेजेंटेशन के वक्त में आपने देखा 2-3 लोग अपना आपस में डिस्कस कर रहे हैं, फोन चला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बट यहाँ पे आप कुछ बहुत इंपॉर्टेंट उनको बता रहे हो, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, और जो लोग फोकस कर रहे हैं हम लोग उस पर फोकस करके काम करते हैं। दिस इज व्हाट ड्राइवर स्टाइल इज ऑल अबाउट। यू इग्नोर all the unnecessary receivers, signals that you are receiving, and you focus only on expressing yourself. जैसे अभी मैं कर रही हूँ, ठीक है, आप में से कोई अपना काम कर रहे हो, आप में से कोई मुझे रिप्लाई नहीं दे रहे हो, कुछ भी हो, आई एम नॉट into that because I know I have to give you this information which is very very important. I'm into the driver mode, right? Second one, conversationalist. जब आप अपने टीम मेंबर्स के साथ काम कर रहे हो and you have to be equal on listening as well as communicating part, then you are into the role of conversationalist. जो हम लोग maximum time होते हैं, मैक्सिमम टाइम वी आर इन द रोल ऑफ कन्वर्सेशनलिस्ट ओनली, जहां पे हम लोग दूसरों की बात सुनते भी हैं और अपनी बात रखते भी हैं। लेकिन अगर आप में से कोई भी ऐसे है कि टीम के साथ में भी काम करते वक्त सिर्फ अपनी बातें बताने में फोकस रखते हैं, दूसरे लोग कुछ आके बात बताना चाहे आप उसको इग्नोर कर लेते हो, बट यू आर मोर ओवरऑल, नहीं मेरी बात सुनो, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे करो, डेफिनेटली पीपल विल नॉट लाइक इट, पीपल विल फील दैट यू आर बिकमिंग ड्राइवर, तुम मेरे बॉस नहीं हो, तुम मेरे कॉलीग हो, दे विल डायरेक्टली से दैट, राइट? एक्सक्यूज मी, दैट इज नॉट करेक्ट वे. You need to be equal on both parts. Next, absorber. अभी आप लोग जो रोल में हो, that is absorbing, taking the messages, है ना? One who is absorber
उसको ना बोलने का उतावलापन नहीं होता है, वो फोकस करते हैं ज्यादा अब बात सुनने में, so that they can take proper decisions, so that they can take proper messages from the person who's telling them. तो absorber is a activity जहाँ पे आप बहुत important प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो या फिर डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, उस वक्त आपको क्या करना है, एब्सॉर्बर के रोल में चल जाना है। यहाँ पे बोलने का उतावलापन बिल्कुल नहीं, सिर्फ सुनना है, what the person is telling me, that's it. Idea clear? Absorber, just give me a minute. Yeah. So expressive skills इनका बहुत लो रहता है, इनका रिसीविंग स्किल्स हाई होता है। कन्वर्सेशनलिस्ट का एक्सप्रेसिंग एंड रिसीविंग स्किल्स दोनों इक्वल होता है। लास्ट वन, एनालिस्ट। अब एनालिस्ट का मतलब हो गया, सपोज आप में से कोई अकाउंट्स में है, ठीक है, अब अकाउंट्स वालों के साथ आप कभी बात करो, वो लोग सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करेंगे आपसे। अगर आप उनको बोलोगे ना मुझे लग रहा है इस बार 2% जितना तो प्रॉफिट दिखा रहा है, तो क्या फिगर्स दिखाओ, फैक्ट्स बताओ, राइट? एनालिस्ट का वो रोल होता है कि मुझे परसेप्शंस पे नहीं जाना है, मुझे बायस नहीं होना है, मुझे फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पे बात करनी है, राइट? सो ये जो 4 कम्युनिकेटर स्टाइल्स है, they are very very important when it comes to shuffling your roles between different duties, between different people. कभी आपको बहुत डोमिनेटिंग होके बात करना है, कभी आपको अपने कॉलीग्स के साथ इक्वल कंट्रीब्यूशन में बात करना है, कभी आपको सबमिसिव होके ज्यादा सुनना है, तो कभी आपको सिर्फ चुप रह के फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करनी है। अगर आपको चाहिए कि आपका जो रोल अब आपके पास पे आने वाला है वो एनहांस्ड रहे, इफेक्टिव रहे, प्लीज प्रैक्टिस दिस कम्युनिकेटर स्टाइल फ्रॉम टाइम टू टाइम। और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना होगा, कुछ याद नहीं रखना होगा, सिंपल फोकस करिए, अभी मुझे क्या करना है, अभी मेरा क्या रोल है। अगर आप लीडर के रोल में हो, गेट इनटू द ड्राइवर सीट। अगर आप टीम मेंबर्स के साथ में हो, बी अ कन्वर्सेशनलिस्ट। कम बोला तो चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा बोल के दूसरे लोगों को अनकंफर्टेबल मत करिए। जब आप एब्सॉर्बर के रोल में हो और उस वक्त आप ज्यादा बोलने लग गए, तो क्या होगा, डेफिनेटली जो सामने वाला आपको मैसेज देना चाह रहा है वो मैसेज आप नहीं ले पाओगे। अभी सपोज करिए कि आप बार बार मुझे कोई क्वेश्चन कर रहे हो, बार बार आप मुझे कुछ कुछ बोल रहे हो, पूछ रहे हो, so definitely I won't be able to complete this in the given time span, right? तो हमारा मैसेज भी कन्वे नहीं होगा, दूसरे लोग भी नहीं समझ पाएंगे, आपको भी पूरा नहीं समझेगा। That is why it is said, जब एब्सॉर्बर का रोल है तो एब्सॉर्बर के रोल में रहो। एनालिस्ट तो you got that, right? कम्युनिकेटर स्टाइल। ये होने के बाद कैसे हम हमारी बोलने का तरीका, स्पेशली बोलने का तरीका एनहांस करें, ये 3 बहुत अच्छे टूल्स मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है? नंबर 1, जो भी आप बोल रहे हो, जो भी आप कन्वे कर रहे हो, उसको एक पैशन के साथ कन्वे करिए। आपके अंदर में आपके अंदर में एक पैशन दिखना चाहिए सामने वाले को, वो कॉन्फिडेंस के साथ आता है फिर जो भी आप बोल रहे हो, ठीक है? तो पहला तो हो गया पैशन एंड कन्विक्शन। सेकंड है एनेबल द रिसीवर टू विजुअलाइज द मैसेज। जो भी आप मैसेज दे रहे हो उसको वो पूरा ऐसे समझाओ, इतना प्रॉपरली डिस्क्राइब करो कि दैट पर्सन अंडरस्टैंड्स इट सो क्लियरली एज इफ इट्स सीक द मैसेज। थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेट थ्रू रिसीवर्स पर्सपेक्टिव। वो अगर मैं उसकी जगह पे होता तो मैं ये मैसेज को कैसे समझता, उसके पर्सपेक्टिव। सपोज उसको नहीं समझ में आ रहा है ये चीज, ठीक है, तो मैं उसके लेवल तक जाके उसको समझाऊं, उसको मैं एकदम बेसिक में जाके समझाऊं। दैट इज व्हाट वी हैव टू डू।
कम्युनिकेट थ्रू रिसीवर्स पर्सपेक्टिव। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं आपको यहाँ पे। देखिए, जनरली व्हेन वी टेक द ट्रेनिंग प्रोग्राम, वो इंग्लिश टू इंग्लिश ही एक्सपेक्टेड रहते हैं, बट यहाँ पे हम लोग को सबको पता है दैट द मोस्ट अंडरस्टैंडेबल प्रोग्राम अगर वो इंग्लिश और हिंदी में है तो ही हमें समझ में आते हैं, तो ही हम कनेक्ट कर पाते हैं। एम आई राइट और नॉट? यस, कैन आई गेट थम्स ऑन दैट? सो वंस यू अंडरस्टैंड द रिसीवर्स पर्सपेक्टिव, सी सो मेनी थम्स आई गॉट, वंस यू अंडरस्टैंड रिसीवर्स पर्सपेक्टिव, हम लोग प्रॉपरली उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। अगर यही प्रोग्राम पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश होता तो अभी जैसा कनेक्शन आप लोग का है प्रोग्राम के साथ में होता, लेकिन थोड़ा कम होता। व्हाट आई फील इज दैट आउट ऑफ ऑल माय एक्सपीरियंसेस, राइट? दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू हियर, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है ये तीनों चीजें। व्हेन यू वांट टू एनहांस योर इफेक्टिवनेस, जब ये वर्बल कम्युनिकेशन की बात है, कभी भी किसी के सामने आप जा रहे हो, ठीक है, आपका बोलने का जो इंप्रेशन होगा वो आपका कॉन्फिडेंस बताएगा, आपका पैशन बताएगा, ठीक है। जब आप सामने वाले को प्रॉपरली विजुअलाइज करवाते हो मैसेज, सुनो, आप वहां जाओगे, एक ब्लू कलर का बड़ा गेट आएगा, सबको दिखा ना ब्लू कलर का बड़ा गेट यहाँ पे, बस वैसे ही आपको एक्सप्रेस करना है, ओके। एंड देन व्हेन यू कम्युनिकेट, उनको क्या समझ में आएगा, वो किस चीज से समझ में आएगा। जैसे मैं आपके साथ में बात कर रही हूँ तो मैं आपको प्लांट का एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल दे रही हूँ। अब सेम चीजें अगर मुझे कोई स्टूडेंट्स को बताना है तो मैं उनको फ्रेंड्स के एग्जांपल दूंगी, राइट, एम्पैथी के साथ में। सो अंडरस्टैंड दिस एंड स्टार्ट यूजिंग दिस थिंग, राइट। छोटी सी चीज है, इट्स अ टूल, ठीक है, तो आपको इसको यूज करना है। अब यहाँ पे बात हुआ था वर्बल कम्युनिकेशन का, अभी थोड़ा मुझे फास्ट लेना पड़ेगा, ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, बट इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जब आपका फर्स्ट इंप्रेशन किसी के ऊपर पड़ता है ना, वो फर्स्ट इंप्रेशन होता है बाय द वे यू आर एक्सप्रेसिंग इट, बाय द वे यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ देम, बाय द वे यू आर योर बॉडी लैंग्वेज इज सीन। तो ये सारी चीजें जब इतनी मायने रखती है तो हम लोग तो इस पे फोकस ही नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ फोकस करते हैं, हाँ मैसेज दे दिया वोकैबुलरी पे, लेकिन द फैक्ट इज जो आपको सुन रहा है, जो आपको समझ रहा है, उसका फोकस आपकी वोकैबुलरी पे सिर्फ और सिर्फ 7% होता है। आपके टोन पे, आपने जो बोला है उनको, आपके वो टोन पे उनका फोकस 38% होता है, एंड मैक्सिमम फोकस, दैट इज 55% ऑफ द फोकस इज ऑन योर बॉडी लैंग्वेज। आप जिस तरह से खड़े हैं, आप किस तरह से मुंह के एक्सप्रेशन दे रहे हैं, फेस के एक्सप्रेशन दे रहे हैं, आपके हाथ किस तरह से चल रहे हैं, एवरीथिंग इज ऑब्जर्व्ड एट सबकॉन्शियस लेवल। कॉन्शियसली उनको भी नहीं पता कि वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन जो बोलता है ना माइंड का लैंग्वेज, माइंड का लैंग्वेज समझ में आता है। इट वुड बी लाइक वो कुछ बोल रहा था लेकिन आई फील कि वो झूठ बोल रहा था। अब ये जो आई फील वाला चीज है ना, ये आई फील क्या है? दैट इज व्हाट माय माइंड इज टेलिंग मी, बिकॉज माय माइंड हैज ऑब्जर्व्ड द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द पर्सन। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी मैटर करती है जब आप कुछ बोलते हो किसी को। इसलिए कहा जाता है कि हाथ बांध के मत बोलिए, इसलिए कहा जाता है जब आप किसी के सामने बोल रहे हो तो मुंह पे इस तरह हाथ रख के मत बोलिए, क्योंकि वो बताता है कि आप कुछ छुपा रहे हो। आई कॉन्टेक्ट से बोलिए, वो बताता है कि यस यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट यू आर स्पीकिंग, यू आर क्लियर अबाउट व्हाट यू आर स्पीकिंग। अपना टोन कंट्रोल में रखिए, क्योंकि टोन एक ऐसी चीज है जो आपको नहीं पता चलता है लेकिन सामने वाला उस पर बहुत मीनिंग निकाल लेता है। सपोज बहुत ज्यादा आवाज हो रहा है प्लांट में, आपने किसी को सुनाई दे इसलिए जोर से कुछ बोला लेकिन थोड़ा फास्ट बोल दिया, तो क्या होगा? जोर से बोलना और फास्ट बोलना, डोंट यू थिंक इट इज अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ किसी को डांटना? जब हम किसी को डांटते हैं तो जोर से बोलते हैं और फास्ट बोलते हैं, जिसको हम चिल्लाना कहते हैं। उसको लगेगा ये तो हमेशा मुझे डांटते रहते हैं, पर हमको लगता है हम डांटते कहाँ हैं, हम तो उसको सुनाई दे इसलिए जोर से बोलते हैं, लेकिन मेरा बोलने का तरीका फास्ट होता है। रॉन्ग कॉम्बिनेशन, तो सामने वाला मिसकम्युनिकेशन में चला जाता है, राइट? तो इसलिए हमें इस चीज पे फोकस
करना जरूरी है। अब यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज में आपको फोकस करना है अपने फेशियल एक्सप्रेशन, अपना आई कांटेक्ट होना चाहिए। एक्सप्रेशन यानी क्या, हर बार मायूसी वाला फेस मत रखें। इट इज ऑलवेज सेड कि एक छोटा सा स्माइल अपने फेस पे बना के रखो, बिकॉज कोई भी आपको देखेगा ना, वो आपको थोड़ा आपका स्माइल देख के सोचेगा हाँ इनसे जाके बात किया जा सकता है, ये अप्रोचेबल है, इनको अप्रोच किया जा सकता है कोई भी बात पूछने के लिए। बहुत सीरियस वाला फेस देखना आपके आसपास किसी का होगा, आपको भी लगेगा ये कोई डांट तो नहीं देंगे इनको पूछेंगे तो, काइंड ऑफ। अब वेयर अ स्माइल, अ माइल्ड स्माइल ऑन योर फेस ऑलवेज व्हाइल वर्किंग, ये आपको थोड़ा मेंटली भी स्ट्रेस फ्री रखता है। आई कांटेक्ट बनाना है, पोस्चर करेक्ट रखना है, अपने जेस्चर्स पे फोकस करना है, अननेसेसरी मूवमेंट को कंट्रोल करिए अब आप, ठीक है। अननेसेसरी हाथ को मूव करते रहना, पेन मूव करते रहना, किसी से बात करते करते, ये डिस्ट्रैक्ट करता है। मैं आपसे बात कर रही हूँ और मेरा पेन यहाँ पे मूव हो रहा है इस तरह से, कोई मतलब ही नहीं बनता है। आपका पूरा फोकस मेरी बातों से ज्यादा ये पेन के मूवमेंट पे जाएगा, विच इज नॉट राइट एट ऑल। जब आप किसी से बात कर रहे हो, आई कॉन्टैक्ट एंड फोकस ऑन द मैसेजेस, दैट्स इट। तो उनका भी फोकस आपके मैसेजेस पे ही रहेगा, राइट। These are the things we need to focus on. बाकी सारी चीजें आपको पता है। Listening skills, very very important. जितना important effective communication है, मतलब effectively communicate करना है, उतना ही important attentive listening है। Most of the people do not listen. सुन रहे हैं, ठीक है, लेकिन होता क्या है, they have their own things going in their mind. अरे ये इसके ऊपर मैं इसको ये जब बोल सकता हूँ, अरे इसकी जगह पे उसने ऐसा किया होता तो अच्छा होता, ये जब सामने से आ रहा है ना, दैट मीन्स यू आर नॉट लिसनिंग वेल। और एक चीज होती है, जब हम किसी के साथ बात करना शुरू करते हैं, हमें लगता है लोग हमें सुनते नहीं रहे, लगता है ना। एक्चुअली दैट इज कॉल्ड एज लेवल्स ऑफ लिसनिंग। जब आप किसी से बात करना शुरू करते हो, लेट्स से इन अ मीटिंग, ऑन द फोन कॉल, फेस टू फेस किसी को बुलाया है, कभी भी, this 7 levels of listening takes place. It starts with not listening. जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया, definitely you all were not listening. क्या कहा था जय सर ने, कुछ किसी को याद है स्टार्टिंग में? नहीं होगा शायद। क्यों? क्योंकि आप लोग सब अपना काम को सेटल कर रहे थे, अपना माइंड को थोड़ा सा यहाँ रख रहे थे, बाकी मोर ऑफ द फोकस वाज इन द वर्क दैट यू वर ऑलरेडी डूइंग बिफोर दिस प्रोग्राम स्टार्टेड। यस और नो? तो वही है नॉट लिसनिंग। द फर्स्ट लेवल इटसेल्फ सेज नॉट लिसनिंग। तो अब यहाँ पे जब नॉट लिसनिंग वाला लेवल है, मेरा जिम्मेदारी एज अ कम्युनिकेटर क्या है कि जो मुझे नहीं सुन रहे हैं उनको मैं इन्वॉल्व करूं प्रोग्राम में या मेरी बातों में, जिससे कि सेकेंड लेवल ऑफ लिसनिंग शुरू होता है, प्रिटेंड लिसनिंग। आप थोड़ा इधर फोकस कर रहे हो, ऐसे नोट कर रहे हो और अपना थोड़ा सा काम यहाँ पे कर रहे हो, एक दो साइन करके देने की, वो करके दे दिया, फिर आपने यहाँ पे नोट किया, यू प्रिटेंड दैट यू आर लिसनिंग। ठीक है, ये भी हम लोग करते हैं बहुत सी बार। हाँ बोलो ना, मैं सुन रहा हूँ, ऐसे करते हैं ना। दैट इज व्हाट प्रिटेंड लिसनिंग इज ऑल अबाउट। पार्शियल लिसनिंग, जहाँ पे आपका फोकस डेवलप हो चुका है लिसनिंग में, बट यू आर half here and half there finishing your task. Partial listening. Partial listening में once you get involved, once your interest starts generating, उसके बाद में focused listening शुरू होता है। फिर आप interpret करते हो, फिर आप interact करते हो, questions पूछते हो, और फिर जब आपको आंसर मिलते हैं तो engaged listening होता है। These are the levels of listening. From time to time you need to understand कि जो आपको सुन रहा है वो किस लेवल में है, ये आपको पता चल जाएगा। सपोज जो नॉट लिसनिंग है वो पहले ऐसे चेयर से पीछे बैठा रहेगा, प्रिटेंड लिसनिंग में हाँ हाँ करेगा, थोड़ा आगे आएगा, थोड़ा पीछे जाएगा, है ना, इधर उधर देखेगा। फोकस लिसनिंग में वो स्ट्रेट होके आपको देखने लगेगा। एंगेज लिसनिंग में वो इस तरह से आपको सुनेगा। आपने ये सारी बॉडी लैंग्वेज अगर नोटिस की होगी कभी, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। 7 levels of listening। अब इंटरेक्टिव लेवल ऑफ लिसनिंग ये होता है जहां पे आपने सामने वाले को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया है। नाउ यू कैन पुट अप योर पॉइंट
अगर निगोशिएशन कर रहे हो, कोई चीज को लेके उनको कन्विंस करना है, तो नाउ यू कैन पुट अप योर पॉइंट। उनका इंटरेक्टिव लिसनिंग शुरू हो चुका है। ठीक है, लेवल्स ऑफ लिसनिंग। ठीक है, अब यहाँ पे इफेक्टिव लिसनिंग की जब हम बात कर रहे हैं, बिहेवियर ऐसे कौन से होंगे जो आपको इफेक्टिव लिसनर बनाएगा। इफ यू वांट टू बिकम एन इफेक्टिव लिसनर, कौन कौन से टाइप ऑफ बिहेवियर आपको दिखाना होगा। बिकॉज मैंने आपको कहा ना कि सामने वाला जब आपसे बात कर रहा है ना, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी उसका माइंड अनकॉन्शियसली रीड कर रहा है। और अगर आपका बॉडी लैंग्वेज बता रहा है दैट यू आर नॉट इन्वॉल्व इन लिसनिंग, तो सामने वाला जो है ना अपनी बात रखेगा भी नहीं आपके सामने। एंड अभी आप जिस लेवल पे जा रहे हो, यहाँ पे यू हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर, क्योंकि आपके सीनियर्स जो आपको कहेंगे वो आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। आपके सबऑर्डिनेट्स जो आपको कहेंगे उसको समझ के आपको उस पर प्रोसेस करवाना होगा। सो हियर यू नीड टू बी एन वेरी इफेक्टिव लिसनर। उसके लिए आपको दिखाना होगा अपनी बॉडी लैंग्वेज पे भी दैट यू आर लिसनिंग वेल। क्या करना है? नंबर 1, आराम से बैठिए। ठीक है, मेंटेन अ रिलैक्स बॉडी पोस्चर विच शोज कि मेरे माइंड में कुछ नहीं चल रहा है, मेरा माइंड रिलैक्स है इसलिए मेरा बॉडी रिलैक्स है। दैट इज हाउ इट गोज। लीन स्लाइटली फॉरवर्ड। जब आप थोड़ा फॉरवर्ड लीन करते हो, सामने आते हो, दैट मिनिमाइजेस द डिस्टेंस बिटवीन कम्युनिकेटर एंड यू। तो ये जितना डिस्टेंस कम उतना अच्छा लिसनिंग। ठीक है, थोड़ा सा सामने इस तरह से बैठिए, सामने होके बैठिए। जो आपके सामने आपसे बात कर रहा है उसके आई लेवल पे रहिए। जैसे ये लैपटॉप मेरा थोड़ा नीचे था, तो आई लेवल से मेरा नीचे था। आई ब्रॉट इट टू द आई लेवल सो दैट आई कैन बी एट योर आई लेवल। वो स्क्वायर लेवल बोलते हैं। जब सामने कोई आता है, जैसे अगर आप बैठे हुए हो, सामने खड़े हैं, तो आपने देखा होगा ऑटोमेटिकली योर माइंड विल टेल यू टू स्टैंड अप। आई लेवल पे नहीं जाओगे तब तक में वो बात कंफर्टेबली नहीं हो पाएगी। तो जिसको भी आप सुन रहे हो ना, उनके आई लेवल पे आप जाके सुनो। मेंटेन एन ओपन पोस्चर। ओपन पोस्चर क्या होता है? आर्म्स क्रॉस नहीं करके ओपन रखना। ठीक है, फेस पे हाथ ना रख के उसको ओपन रखना, उनके सामने देखना। ऑल दीज आर ओपन पोस्चर। एप्रोप्रिएट डिस्टेंस रखिए ताकि वो कंफर्टेबली आपसे बात कर सके। उसके बाद ऑफर सिंपल एक्नॉलेजमेंट लाइक हाँ हाँ, अच्छा वो नहीं हुआ, फिर आपने क्या किया। छोटे छोटे क्वेश्चंस करना, पैराफ्रेज करना, समराइज करना। दैट शोज दैट यू आर लिसनिंग। नोट करना, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। रिफ्लेक्टिव इमोशंस लाइक अच्छा नहीं हुआ ना, सीरियसली समझ रहे हैं हम, ऑल दिस थिंग्स। यूजिंग आई कॉन्टेक्ट। बहुत से लोगों का आदत है दे विल पिक अप देयर फोन इन फ्रंट ऑफ देम। हाँ बोलो ना, क्या बोल रहे हो। परफेक्टली द मोस्ट इनइफेक्टिव वे ऑफ अ लिसनर। आपका फोन को साइड कर दीजिए उसको, जैसे मैंने आपको कहा ना कि आप अपने सामने रखिए ही मत जब आप किसी को सुन रहे हो। देखिए, जब हम लोग कहीं बैठे हुए होते हैं, हमारे सामने टेबल पे बहुत सी चीजें रहती है ना, लाइक पेपर्स एंड ऑल। जब आप किसी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट कुछ डिस्कशन कर रहे हो, कोई पेपर के नीचे अपना फोन रख दीजिए। That also shows that you do not want to distract yourself, you want to focus on the listening. ठीक है? Providing non-distracting environment. This is very very important. Idea clear हुआ सभी का यहाँ पे? इसके बाद behaviors that hinder effective listening. कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि सामने वाले को दिखा देती है that you are not listening? Acting distracted. बार बार इधर उधर देखना, घड़ी देखना, फोन देखना, उनकी बात खत्म हुई नहीं और अपनी बात शुरू कर देना। टेलिंग योर ओन स्टोरी विदाउट एक्नॉलेजिंग देयर फर्स्ट। रिस्पॉन्स ही नहीं देना वो लोग क्या बोल रहे हैं। इनवैलिड रिस्पॉन्स, अरे तुम ऐसे ही बोलते रहते हो, तुम्हारा कुछ नहीं है। पुटिंग डाउन, इंटरप्टिंग इन बिटवीन, क्रिटिसाइजिंग, जजिंग देम, छोटी छोटी बात को लेके डायग्नोस करना। अरे ऐसे क्यों बोला तुमने, तुम्हारा क्या इंटेंशन था ये बोलने के पीछे। अब वो अपनी स्टोरी बता रहा है, तुमको क्या करना है, तुम सुन लो खाली। इन दैट वे unnecessary giving advice and solutions which when not being asked. ठीक है,
सब्जेक्ट चेंज कर देना बिना इसके, दैट शोज दैट यू आर नॉट रेडी टू लिसन टू देम, रीअश्योरिंग विदाउट एक्नॉलेजमेंट, ये सारी चीजें दिखाती है दैट यू वर नॉट इनटू द एक्टिव लिसनिंग पार्ट। अगर इसमें से कोई भी चीज आप कर रहे हो उसको लिख लीजिए और उसको कट करिए कि आई एम नॉट गोइंग टू डू इट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, बिकॉज ये आपका पर्सनालिटी पे भी एक क्या कहेंगे नेगेटिव मार्किंग हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, एक मिनट, इसके बाद हम लोग बात करेंगे ईमेल पे। जब हम किसी को ईमेल्स भेजते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वे ऑफ कम्युनिकेशन माना जाता है। When you are sending the email, make sure number 1 आपका जो ईमेल आईडी है सामने वाले का वो सही आपने लिया हो। ठीक है, सेकंड, सब्जेक्ट मस्ट बी वेरी वेल ड्राफ्टेड। सब्जेक्ट इज टर्म एज द क्या कहेंगे ट्रेलर ऑफ द मूवी होता है ना, जैसे वैसा सब्जेक्ट पढ़ के सामने वाले को समझ में आएगा कि इस ईमेल में क्या है, तो उस वक्त तो वो ईमेल खोल लेंगे, लेकिन बाद में जब वो ईमेल को रिट्रीव करना है तो वो सब्जेक्ट लाइन देख के ही वापस से रिट्रीव करते हैं। इसलिए सब्जेक्ट शुड बी वेरी एक्यूरेट, शॉर्ट होना चाहिए एंड जो ईमेल से रिलेटेड है वही होना चाहिए। ऑलराइट, द सब्जेक्ट लाइन शुड बी इफेक्टिवली ड्राफ्टेड। नेक्स्ट, जो आप सैल्यूटेशन दे रहे हो दैट शुड बी एज पर द डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन। जैसे डियर सर इज वेरी मच इन, okay, लेकिन if you are writing the email to any of the another company जिसमें आपको नहीं पता the receiver is sir, madam क्या है, dear बोलना उनको सही रहेगा नहीं रहेगा, perfectly fine to just write sir or madam oblique madam and then start with it, have a good day या greetings of the day, थोड़ा सा उसके बाद में आप शुरू करिए। एंड ईमेल जो ड्राफ्ट करते हैं हम, ईमेल ड्राफ्टिंग भी जो होता है वो रिसीवर्स पर्सपेक्टिव से होता है। सबसे पहले तो वो पॉइंट आना चाहिए जो कि सामने वाले का इंटरेस्ट का हो उसके बाद में बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, मतलब एक ईमेल एक टॉपिक होना चाहिए सबसे पहले तो। अब फर्स्ट में आपने पैराग्राफ में डाल दिया जो आप लोगों ने इंपॉर्टेंट फीडबैक देना था, या तो फिर लेट्स से यू आर राइटिंग एन ईमेल फॉर सम प्रोडक्ट इंक्वायरी। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट इंक्वायरी के लिए जब ईमेल ड्राफ्ट कर रहे हैं तो उसमें मेरा फर्स्ट पार्ट ये आएगा कि आई हैव सो एंड सो रिक्वायरमेंट। आपने अपनी रिक्वायरमेंट पहले बता दी, सो फॉर दिस रिक्वायरमेंट आपका ये जो प्रोडक्ट है उसके बारे में मुझे बताइए, प्लीज लेट मी नो अबाउट योर प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस एंड वेदर दिस प्रोडक्ट वुड बी हेल्पफुल टू मी फॉर माय दिस रिक्वायरमेंट और नॉट। शॉर्ट, स्ट्रेट एंड सिंपल। वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। For any more clarifications, feel free to call me between so and so time. अपना नंबर मेंशन करना मत भूलिए, अपना डेजिग्नेशन मेंशन करना मत भूलिए उसमें। This helps the person to understand. क्या होता है ना, वो ट्रेल मेल जब चलता रहता है ना तो उसमें बातें कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाती है, so it's better to discuss it over the video conference or the call. इसके लिए लास्ट में आपको लिखना भी जरूरी है। तो ईमेल ड्राफ्टिंग भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका कम्युनिकेशन का। मैसेज ड्राफ्टिंग ऑल्सो, ईमेल्स में कोशिश करिए कि आप कैपिटल लेटर्स ना लिखें। सेंटेंस जैसे हम लोग एक फॉर्मल लेटर जो हैंड रिटन लेटर या टाइप लेटर होता है उसी तरह से ईमेल में भी कैपिटलाइजेशन, फुल स्टॉप, वो सब का ध्यान रखना है, पैराग्राफ्स का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीजों पे प्लीज फोकस करके ईमेल ड्राफ्ट करिएगा। Now, although it's 7 minutes early, कोई question, कोई queries है तो you can ask me now. Any question, any query, feel free to answer. मैम मैं एक चार्ट में लिखा था क्वेश्चन ये Chat के questions, I'm just coming up with that. स्टार्टिंग में ही लिखा था। Okay, I'll just take it up. How to handle the initial pressure during the interview, right? Yes ma'am, yes Okay, देखिए इंटरव्यू का क्या है ना, in the interview you are going to display your skills. बाकी
बाकी आपकी जो एकेडमिक्स वगैरह है, मतलब यहाँ तो आपका जो इंटरव्यू होगा वो तो स्किल लेवल पे ही होगा। सॉरी। तो जो स्किल बेस्ड इंटरव्यू होता है उसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि आप कितने रिलैक्स्ड हैं। अब इंटरव्यू इटसेल्फ इज अ प्रेशर वाला सिचुएशन, अब प्रेशर वाले सिचुएशन में आप कितने रिलैक्स्ड है वो मैटर करता है यहाँ पे, ठीक है। सो जस्ट गो एज इफ आप सिर्फ बात करने जा रहे हो, ठीक है, वो ही फीलिंग लेकर जाइए। दिमाग में क्या चलेगा उस टाइम में, उसी के ऊपर प्रेशर भी इम्पैक्ट करता है ना वो। हाँ, तो दिमाग एकदम आशीष जी क्लियर करके जाइए, एकदम क्लियर करके। जो पूछेंगे हम वो बता देंगे, आएगा तो पूछेंगे बताएंगे, नहीं तो बोल देंगे सर इसके बारे में जानकारी नहीं है। खुद को इतना रिलैक्स कर दीजिए जाने के पहले, तो आपको उसका प्रेशर फील नहीं होगा, ठीक है। ओके, सो वी डू नॉट हैव सो मच टाइम फॉर द क्वेश्चंस, बट फिर भी जितने हो सकते हैं आप चैट बॉक्स पे डालिए। Just one question, ma'am. श्योर। Ma'am, how to maintain a line between conversationalist and the driver? Because once you are being a balanced way of delivering and communicate listening, so once you are switching it to your role to a driver, so people take you casually. I have faced these things. So how to maintain a line between that? Line between that, मतलब from conversationalist to driver, you asked me. Exactly, ma'am. Because being a driver, the people take you casually. Because once you have already been a relaxed way, you have talked in a relaxed way with someone, and again you are switching your role to a driver, they take you as a casual also. So इसके लिए ना आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली नो बोलते सीखना होगा, इग्नोर करते सीखना होगा। कभी कभी आपको पे क्रिटिसिज्म फेस होगा, लेकिन देन दे विल बी लाइक कि नहीं, इनका प्रिंसिपल अब है, ही वांट्स इट मींस ही वांट्स इट। वो जो क्लियर कट आप जो बोलते हो, अभी इस पे क्या होगा पता है आपको, सिचुएशन जो आपके कॉलीग्स थे कहीं ना कहीं वो आपके सबऑर्डिनेट्स मिलेंगे आपको, तो वहां पे आप उनके सामने ड्राइवर अगर बन जाओगे तो वो लोग तो बोलेंगे अब हमारे साथ काम कर रहा था अभी तक, अभी ये तो कैसे बोल रहा है हमको। वहां पे आपको उनको बोलना पड़ेगा, देखो काम पहले, काम की जगह पे नथिंग डूइंग, मुझे ये चाहिए, आप कब तक करके दोगे मुझे बताओ। एंड देन डोंट स्टैंड फॉर अननेसेसरी क्लैरिफिकेशन। नंबर 1, अननेसेसरी क्लैरिफिकेशन देना बंद कर दो, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है उसको ज्यादा तूल देना बंद कर दो, उसको ज्यादा क्या एडर करना बंद कर दो। स्टॉप एडरिंग द रिक्वायरमेंट्स, बोलना मुझे ये जरूरी है, आप इसको करके दो, बाकी देखा जाएगा। राइट, रिसीविंग द सिग्नल्स, stop receiving the signals from them, just be expressive. That is how you have to do it. ठीक है? Anything else? Any other question in the chat box? Okay, आपको लगता है जो आज हमने बात किया वो आपको हेल्पफुल रहेगा? Would it be helpful to you all to enhance your effectiveness in communication? इसके लिए एक छोटा सा एक्शन प्लान बता रही हूँ। ओके, एक छोटा सा एक्शन प्लान है, जितनी चीजें बताई है, ज्यादा नहीं, आपको मैंने 4 चीजें बताई है, ठीक है। अब ये चारों चीजों में से जो भी चीजें आपको लगती है कि ये आज से ही काम करना शुरू किया जा सकता है, अभी से उसको सोचिए कैसे आप अपने हैबिट्स में लेकर आएंगे और उसको शुरू करिए। हम लोग ने बात किया था कैसे हम कम्युनिकेशन को क्लियरली रख सके, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन पे बात किया, हमने बात किया कम्युनिकेटर स्टाइल्स पे, हमने बात किया कम्युनिकेशन फेल क्यों होता है, हमने बात किया लिसनिंग स्किल्स को कैसे बेटर करना है, और हमने बात किया ईमेल। 5 चीजों पे बात किया, राइट। अब ये सारी 5 चीजों में आप ये खोजिए कि आपको ये 5 में से कहाँ प्रॉब्लम है। अगर आपको फेस हो रहा है, बार बार कम्युनिकेशन फेल हो रहा है, कम्युनिकेशन फेलियर का आपने स्लाइड का पिक्चर लिया होगा, फोकस करिए आपके क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मुझे कहाँ काम करना शुरू करना है, थोड़ा सोचिए उसके बारे में और काम करना शुरू कर दीजिए। आपके कलीग्स को बोलिए, देखिए इस तरह से है, अगर मेरा ये प्रॉब्लम आता है प्लीज मुझे पॉइंट आउट करिएगा। एंड बी ओपन फॉर, अभी जस्ट बिगिनिंग ऑफ योर नेक्स्ट फेज है ना, बी ओपन फॉर द फीडबैक। आपको जो भी फीडबैक मिलता है उसको कंस्ट्रक्टिवली लेके काम करना शुरू करिए, इट विल बी फॉर योर ग्रोथ। डू नॉट क्रिएट द वॉल इन फ्रंट ऑफ यू एंड पीपल फीडबैक को लेके। बुरा मान जाओगे, दूसरी बार से वो लोग आपको फीडबैक नहीं देंगे, फिर आपका ग्रो कैसे होगा, आप ग्रोथ कैसे करोगे, राइट। बी ओपन फॉर दैट। सो एनी
Any other question? Anyone? No? So, with this, we come to the conclusion. Communication ऐसी चीज है ना, every day you face with new challenges in communication because you meet new people. आपको उनके बारे में ज्यादा पता नहीं है, ठीक है, वो कैसे है, क्या है and all. एक आपका एक तरीका, स्टैंडर्ड तरीका रहेगा ना कम्युनिकेट करने का लोगों के सामने, तो क्या होगा ना कि people will be able to understand you. फिर आपको लोगों को नहीं समझना पड़ेगा, लोग आपको प्रॉपरली समझ जाएंगे, आप उनको क्या बोलते हो वो समझ जाएंगे. ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये स्टैंडर्ड चीजें हैं जो आपको हेल्प करेगी ग्रो करने में, ठीक है. स्टार्ट यूजिंग दिस. विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक इन एवरीथिंग दैट यू डू. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट एंड present also to take this knowledge. Thank you so much. Thank you. Have a great Thank you so much to you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, madam. Thank you. Thank you. You may leave the session.